اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا جو ہمارا سبجیکٹ ہے ایشوز ان پاکستان اکانومی۔ اس میں ٹاپک کا نیم ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہم نے پاورٹی کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ پاورٹی کیسے انکریز ہو رہی ہے ہمارے ملک میں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایسے میئرز ہیں جن کی مدد سے ہم پاورٹی کو ریموو کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اس میں جو اب اس کے جو پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ وہ ہے کہ ہم پاورٹی پر اس صورت میں کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم پاپولیشن پہ کنٹرول حاصل کر لیں، کیونکہ جب انکریز ہوتی پاپولیشن جو ہے وہ جو ہمارے ریسورس ہیں ان کے اوپر ایک برڈن ہے، اور اس برڈن کی وجہ سے وہ جو ریسورس ہیں وہ اوور پاپولرائز ہو جاتے ہیں۔ اس میں پاپولیشن کے انکریز ہونے کی وجہ سے ان کو ایکسٹینسو ان کا یوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ریسورسز کا جو ہے وہ ضیاع ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاپولیشن انکریز جب ہو رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ان کو تعلیم، صحت اور اس طرح کی ضروریات جو ان کے لیے ضروری ہیں وہ بھی ہمیں پہنچانی چاہیے۔ ٹو انکریز دا انکم آف دا پور کلاسز دیٹ may be provided consumable on subsidies, the educated unemployed be given unemployment allowances in some amount۔ مطلب جو بھی پاپولیشن میں ہمارے پاس جو لوگ انمپلائڈ ہیں، جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، ان لوگوں کو اس طرح کے ہمیں انمپلائڈ دینے چاہیے، الاؤنسز دینے چاہیے کہ جب تک ان کو پراپر جاب نہ ملے وہ اس وقت تک جو ہے وہ اپنا گزارا کر سکے۔ تو پاپولیشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اصل میں تو یہ پاور ہے اس ملک کی، لیکن پاکستان جیسے ممالک جو ہیں جن کے پاس اس قدر ریسورسز نہیں ہیں جس قدر ان کے پاس آبادی ہے، تو یہ جو پاور ہے یہ ان کی کمزوری بنتی جا رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے وہ مالک جو ہیں وہ اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں خطے کے باقی ممالک کے ساتھ اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ، جس طرح کے باقی ممالک نے اپنی اس آبادی کو اپنی طاقت بنایا ہے۔ جیسے کہ ہم انڈیا کی مثال لے سکتے ہیں، جیسے کہ ہم چائنا کی مثال لے سکتے ہیں کہ چائنا نے جو اس طرح سے اپنے ملک کے اندر جو اپنی ان کی آبادی ہے، اتنی زیادہ آبادی کو اس طریقے سے انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے کہ پوری دنیا میں ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمیں پاپولیشن کنٹرول کے بعد دوسرا اسٹیپ ہم اس صورت میں پاورٹی کو ریموو کر سکتے ہیں اپنے ملک سے اگر ہم لیبر انٹینسو ٹیکنیکس کا استعمال کریں۔ یہ ایک لاجیکل بات ہے، یہ ایک حقیقت بات ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سے ان امپلائمنٹ ختم ہو، ہم آبادی پہ کنٹرول حاصل کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر لیبر انٹینسو ٹیکنیکس کو یوز کریں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ماڈرنائزیشن اڈاپٹ کیے بغیر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ساری ماڈرنائزیشن ضروری ہے کیا اس مقصد کے لیے، یا ہم کچھ ایسی اس کی درمیانی راہ نکالیں کہ جس میں ہم ماڈرنائزیشن کی طرف بھی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے ان کو بھی امپلائمنٹ دیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ماڈرنائزیشن کی طرف ہی نہ جائیں انڈسٹری کے، بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ایسی ٹیکنیکس کو بھی کے اوپر ریسرچ کریں، ایسی ٹیکنیک سوچیں کہ جس میں لیبر کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں، اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو اضافہ کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو روزگار ملے اور پاورٹی کا خاتمہ ہو۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ایڈوانس ایگریکلچر ٹیکنیکس۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جو ایگریکلچر بیکورڈنیس ہے وہ ہماری ملک کی ایگریکلچر کے سیکٹر کی جو ترقی ہے اس کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہم نے وہ رکاوٹ ختم کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جدید طریقے جو ہے جو ایگریکلچر کے ہیں وہ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے، جدید مشینری ہمیں جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے، جدید جو ہے ٹیکنیکس، سیڈز اور پیسٹیسائڈز، یہ اس طرح کی جو دیگر جو ادویات ہیں وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی ہماری بدقسمتی سے ہمارے ملک کی جو فیوڈ پیداوار ہے وہ انڈیا سے بہت پیچھے ہے ہم۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ابھی تک وہی لوگ پرانا بیج جو ایک سال پرانا ہوتا ہے وہی جو ہے اگلے سال اس کو استعمال کر لیتے ہیں، یا پھر وہ مارکیٹ سے جو ان کو بیج دستیاب ہوتا ہے وہ کوئی اتنا اتھینٹک نہیں ہوتا ہے، وہ سستے بیج لے کے آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہمیں جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ ایک اچھے اس پہ لے کے آنا چاہیے، معیار پہ لے کے آنا چاہیے، لیکن اس میں اچھے معیار پہ آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں سے جو ہے وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، نہیں، بلکہ جب ہم اچھے ٹیکنیکس کو استعمال کریں گے لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بڑھے گا اور پاورٹی کا خاتمہ ہوگا۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ایلیمینیشن آف انکم انیکوالٹیز۔ یہ ایک
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि इनकम इनक्वलिटी इंक्रीज ही उस जो है वो इंक्रीज़ क्यों हुई है। उसकी इंक्रीज़ होने की जो सबसे बड़ी और मेन कॉज है वो यही है कि जब हमारी हायर अथॉरिटी ने, जो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसियाँ इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बनाई, तो उसमें उन्होंने सिर्फ जो टारगेट रखा वो ये है कि मईशत को ग्रोथ करना चाहिए, इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए, कतई नज़र इसके कि इससे फ़ायदा जो है मुल्क की आबादी के कौन से सेक्टर को होता है या नुकसान कौन से सेक्टर को होता है। इसका नतीजा ये निकला कि जो हमारी मुल्क की जो इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और कुछ लोग जो है वो उसका फ़ायदा उठाकर कि जो लोग पढ़े लिखे थे, जो वेल एजुकेटेड थे, या पहले से ज़िम्मेदार लोग थे, या पहले से सरमायादार लोग थे, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और आज वो जो है वो मिलियनर और बिलियनर बन चुके हैं, जबकि गरीब लोग जो है वो गरीब तरीन हो गए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इनकम इनइक्वालिटी को इंक्रीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसको डिक्रीज़ किया जाए। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आने की ज़रूरत है। अब अजीब सूरत हाल यूँ बनती है कि जब एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो रियायतें देती है, तो वो किन लोगों को रियायतें दे रही है? वो इन बड़े बड़े जो है वो सरमायादारों को या जो है ज़िम्मेदारों को जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो रियायतें देती है। तो उसका नतीजा निकलता है कि ये लोग और ज़्यादा उस रियायत का फ़ायदा उठाकर अमीर तरीन हो जाते हैं। तो फिर इसके अलावा ये प्राइवेट सेक्टर वाले मुनाफियाँ बना लेते हैं कि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कई गुना बढ़ाकर लोगों से चार्ज करते हैं, जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस इनकम इनक्वालिटी को जो है वो एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। उसके बाद स्टूडेंट, हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन इन द नेम ऑफ रिफॉर्म्स। हमारे मुल्क में हर हुकूमत जो है वो नई रिफॉर्म्स जो है वो लेके आती है। कभी वो एजुकेशन के सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आते हैं, कभी वो इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आते हैं, कभी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आते हैं, कभी वो टैक्स के सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आते हैं। अब इस चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि जो रिफॉर्म्स आती हैं, अमूमन इन रिफॉर्म्स का जो नुकसान होता है, रिफॉर्म्स के नाम पे जो नुकसान होता है वो गरीब लोगों का होता है, जो निचले तबके के लोग हैं उन्हीं पे होता है। आप एग्रीकल्चर का सेक्टर देख लें, चाहे आप ज़राअत का सेक्टर देख लें, चाहे आप टैक्सेशन की तरफ आ जाए, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, तो टैक्स लगाने का नुकसान किसको हो रहा है? परचेजिंग पावर किसकी कम हो रही है? तो प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि रिफॉर्म्स के नाम पर, रिफॉर्म ज़रूरी हैं, लेकिन रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ इस तरह की पॉलिसी ना बनाएं कि जिससे जो हमारा निचला तबका है वो दब के रह जाए और जो अपर लेवल के लोग हैं उनके ऊपर इसका असर ही ना पड़े। तो ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क के अंदर इस तरह की रिफॉर्म्स को ना लेके आएँ जो गरीबों की पॉवर्टी में इजाफे का सबब बने। उसके बाद स्टूडेंट, हमारे पास है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स भी इंक्रीज्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब हम अपने मुल्क में बाहर के वाले की चीज़ों को खरीदने की बजाय अपने मुल्क की चीज़ों को, बनी हुई चीज़ों को तरजीह देंगे, और उसमें भी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब बाहर के मुल्क के लोग जो मुल्क से हम चीज़ लेते हैं वो अपने मुल्क में तैयार करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है जहाँ हम एक तरफ अपने मुल्क के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके रोज़गार में इजाफे का सबब बना रहे हैं लोगों के लिए, वहीं पर जब हम दूसरे मालिक से आने वाली चीज़ों को भी अपने मुल्क में तैयार करेंगे तो और ज़्यादा लोगों को जो है वो रोज़गार के मौके मिलेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हमारे मुल्क में तैयार होंगे तो हमारे मुल्क का जो कीमती ज़रिए मुबादला बाहर के मुल्क को उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए हम लगा देते हैं वो हमारा बच जाएगा, और हम उसको किसी डेवलपमेंटल कारोबार में, बिजनेस में, प्रोजेक्ट में लगा के और ज़्यादा जॉब जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद है स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की स्पिरिट जो है वो उसकी कमी है हमारे अंदर। हम वैसे तो अपने आप को बहुत हुबूल वतनी के जो है वो दावे करते हैं, लेकिन हम ये देख लें कि हमारे सर से लेके जो है पैरों तक हमारे पास जो हम चीज़ें पहन रहे हैं वो कौन सी ब्रांड्स की हैं। हम ब्रांड्स के नाम पर इतनी महंगी महंगी चीज़ें परचेज़ करके लाते हैं और अपने मुल्क की जो भी अशिया हैं उनको हम कोई अहमियत या वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें। पहले बिलहैसुल कौम हमें ये तय करना है कि हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है। हम इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, हम इस चीज़ पर शोर शराबा तो बहुत करते हैं, हम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जो एहतजाज करते हैं कि नहीं हम गरीब हो रहे हैं, लेकिन हम उसकी कॉज क्या है और हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं उस पर हम कोई तवज्जो नहीं देते हैं। यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है वो 72-76 सालों में भी हम अभी तक वहीं पर मौजूद हैं जहां हम 1947 में थे, अगर एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि शायद उस वक्त इतनी गुर्बत भी नहीं थी जितनी कि गुर्बत आज हमारे मुल्क में ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो उसकी वजह यही है कि हमने मिनासुल कौम जो है सिर्फ एक आदत बना ली है कि हम चीज़ों को सिर्फ हाईलाइट करने का पता है, उसके सोल्यूशन और उसके बेहतर हल की तरफ हम नहीं जाते हैं। तो नेशनलिज्म की जब तक जो स्पिरिट हमारे अंदर पैदा नहीं होगी
अपने आप को पंजाबी या सिंधी या बलोची या पख्तून की उससे बाहर नहीं निकालेंगे स्पिरिट से, तो उस वक्त तक हमारे अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट पैदा नहीं हो सकती है। और यही वो स्पिरिट है जिसकी बुनियाद पे आज हम देखते हैं कि वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे दुनिया के और सिंगापुर है और ममालिक है, वो पहले उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म पैदा किया है कि हम एक कौम है, हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी एक शनाख्त है, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, हमारे कुछ एटिकेट्स हैं, हमारे कुछ कल्चर है, हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे कुछ फ़राइज़ हैं। तो ज़रूरत है इस बात की बेटा कि हम अपने अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट को पैदा करें। ये भी पॉवर्टी को खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट वन हमारे पास है इम्प्रूवमेंट इन द पॉलिसीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें अपने मुल्क के अंदर जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए या दीगर और मतलब मामलात हैं जो उनको चलाने के लिए, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी उन पॉलिसीज़ को अंदर बेहतरी लेके आएँ। The governance be made better, the self-esteem of the poor be increased through providing them justice, and they be saved from exploitation and official formalities. मतलब कि हमें अपनी जो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बना रही है उनको उनकी तालमेल मिलनी चाहिए इस तरीके से कि हमें वो पॉलिसी बनाई जा रही है, क्या वो उसकी जो पीक है उससे लेके उसकी जड़ों तक उसके असरात जाएंगे, या वो पॉलिसी जो है वो दरमियान में आके ख़त्म हो जाएगी और जो मेन मकसद था उस पॉलिसी को लेके आने का वो मेन मकसद हमें हासिल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एसी बंद कमरों में बैठ के हम पॉलिसी ना बनाएं, बल्कि पहले हमें उसके लिए सर्वे करके लोगों के हालात वाक़यात को देख कर फिर हमें कोई पॉलिसी देनी चाहिए, और वो इस तरीके की हो कि उसमें जो टारगेट ग्रुप है उस तक वो फ़ायदा उस तक वो सहूलत जो है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट ये कुछ मेजर्स हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। अभी हम इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हुए हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा इसी का पार्ट होगा, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।